हर लॉयर में कीड़ा होता है कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना, मतलब दैट इज द अल्टीमेट ड्रीम, पिनिकल। हाँ, कि वंस यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट ऑफिस, दैट्स द पिनिकल फॉर अ लॉ फर्म. For me, compromising on certain principles, because in litigation you never know, right? You will have to defend all clients or you have to represent all kind of clients. So let's say there's a criminal. एक नोशन ये है कि जब स्टार्टअप्स की बात सोचते हैं हमको लगता है कोई टेक्नोलॉजी है, मतलब आप ये सोचो किसी ने अगर सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया है, टेक्निकली इट्स अ स्टार्टअप ओनली. तो सिमिलरली इन आवर केस आल्सो वी हैव अ मिक्स ऑफ क्लाइंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 साल कॉर्पोरेट लॉयर बन लिया तो आप लिटिगेशन लॉयर नहीं बन सकते हो, या आपने 2 साल लिटिगेशन प्रैक्टिस की तो आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में नहीं आ सकते हो. ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन चैलेंजेस, लर्निंग चैलेंजेस, प्रैक्टिस चैलेंजेस, बट ये अच्छी इंटर्नशिप्स मिलती कैसे? देखिए, अच्छी इंटर्नशिप मिलना ऑनेस्टली इज वेरी डिफिकल्ट. अब उसमें डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू कॉल एज अच्छी इंटर्नशिप. Like I've heard about this founders agreement thing, right? हाँ. I'm sure you do this, so Yes. Can you please elaborate a little bit? देखिए, फाउंडर्स अग्रीमेंट आप ये मान के चलो, there's a broad category called shareholders agreement. अब shareholders agreement is simple agreement between the shareholders of the company. What is this new technology having impact on the legal profession? I think I won't be in denial. Impact है, but जो मेरा मानना है, impact is not a. अगर कोई आज आपके पास आए और बोले मुझे AI based बिजनेस बनाना है, so उसके लिए हमारा लॉ रेडी है या अभी रेडी नहीं है? देखिए, AI बेस्ड बिजनेस बनाना है, एक्चुअल में लॉ. Hello and welcome to Talking Through podcast. My name is Dipankar. Today we have a very special guest on our show. His name is Ashish Porwal. He's a corporate lawyer who advises startups and MSMEs in his daily line of work. So without any further ado, let's get to him. Hi Ashish, welcome to Talking Through. Very nice to have you here. It's great to have you here, and it's the first time that we've invited a lawyer or a legal professional to our podcast, and we always wanted to cover it. So my heartfelt gratitude for you to come here. Oh wow, that's a privilege. Yeah. So out of everything you could have done in your life, why you chose to be a legal professional? I can give you very fancy answers कि I was very sharp, I was argumentative, इसलिए मैंने law लिया. But honestly speaking, it was an organic decision. When I was in class 12th, in our school, there were certain career counselors they visited. They asked us to fill an aptitude form. And that was the first time when I realized कि हाँ, ऐसा कुछ process होता है, and probably legal profession is something one could look at. तो aptitude form भरा, and based upon my answers and responses, they suggested I could either go into accounting or into legal. So it wasn't a very vast career option choice, but those suggest kiye broadly. And at that point in time, although I was from commerce stream, I was good at accounts. The reason why I did not choose accounts and took law was कि accounting में आपको CA was one of the brightest professions, and उस time पे CA profession के लिए there was a foundation exam you had to write. उसमें maths होता था. I was not very good at maths. Okay. So by default, I ended up choosing law. That was one reason. And when this recommendation from a career counselor started that legal is something you could look at, that's when I studied, different career options, and I realized that law could be something which can be explored because and this is I'm talking about 2001. उस समय पे being a lawyer used to be a second or third profession. कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने इंजीनियरिंग ट्राई की, हुआ नहीं हुआ, फिर आपने मेडिकल में ट्राई किया, यूपीएससी ट्राई कर ली. यूपीएससी वाज वन कॉमन फनल फॉर अ लॉट ऑफ लॉयर्स कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, आपका ग्रेजुएशन पैरेलली हो गया, तब आप क्या करोगे? आप एलएलबी का फॉर्म भर लो और 3 साल का कोर्स कर लो. एंड दैट यूज्ड टू बी माय नोशन आल्सो. But when these guys advised us कि lawyer is something beyond that. There are specialized lawyers. There's something known as corporate lawyers who are trained as lawyers right after class 12th. So that was the first time I heard about the fact that law is a 5-year course and you can do law immediately after class 12. Before that, I used to think that in order to become a lawyer, आपको पहले graduation करना है, फिर 3 साल का LLB करना है. So basically, the answer is simple. It happened organically, not by accident, but organically, and I ended up becoming a lawyer. Okay. और जब college, when I studied in Pune, ILS Law College, तो when we went to college, उस time पे भी
there was no orientation as such कि मुझे corporate lawyer बनना है या litigation lawyer बनना है. The reason why I could think about being a corporate lawyer and not a litigation lawyer is because of my internships. So as law students, for last 3 years of the entire 5-year course, it's recommended that as law professionals, law students, we should do internships. Okay. So I did a couple of internships. I came to Delhi also to do some litigation internships. And my second last and last internship was in Bombay with a corporate law firm. So comparing between litigation work and non-litigation or corporate work, I realized that probably I'm not cut for litigation. Okay. It could be because, I realized that it's slightly tough, or it was also because I sort of felt that for me, compromising on certain principles, because in litigation, you never know, right? You will have to defend all clients, or you have to represent all kind of clients. So let's say there's a criminal, he comes to you, can't refuse not representing him. But उस केस में आपको पता है कि आपके क्लाइंट ने शायद गलत काम किया हुआ है. But as a lawyer, you can't take, or you have to be blind about that. You have to make all efforts to represent your client and defend your client. So for me, I sort of realized that probably I'm not cut out for that job, and therefore I ended becoming a corporate lawyer. So I started with a law firm in Bombay as a banking and derivatives lawyer. I worked in that organization for almost 1.5 years. Then I sort of came to Delhi, and since then I've been practicing as a general corporate lawyer, full-fledged. All right. Okay, great. So I wanted to ask you a question for the benefit of the people who are going to follow this profession or have decided to follow this profession. How do you really become a corporate lawyer? Like, what is the path from study to internship to there? So the answer is very simple. To become a corporate lawyer, your curriculum will remain the same for entire 5 years, or if you're doing a 3-year law course, your subjects will be almost the same for all kind of streams. So ऐसा नहीं है कि corporate lawyer को ये पढ़ना पड़ता है, litigation lawyer को ये पढ़ना पड़ता है. So your subjects will remain the same. Of course, you will have some optional papers. कि let's say you can choose between criminology and banking and stuff like that. तो वो basic होगा, but otherwise the curriculum is same. तो पढ़ाई के दौरान, while you are studying law, it does not really matter. You don't have to be trained, or you don't have to train your mind कि I have to become a corporate lawyer. The difference will arise, and your internships will make a lot of difference to you. जब आप internship करते हैं, आपको exactly समझ में आता है कि corporate lawyering में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है. Similarly, litigation lawyer में आपको क्या करना होता है. तो जब आप internship करोगे, that's when things will start becoming clear to you that I want to become a corporate lawyer. And that's when you will start picking up more information about that profession. कि जब आपको corporate lawyer पढ़ना है, तो आप corporate law से specific जो legal journals होते हैं, you start reading those. You will start reading online content relating to that, and you will start focusing towards joining a corporate law firm rather than becoming a litigation lawyer. So that's the only thing that will help you decide whether you want to become a corporate lawyer or you want to become a litigation lawyer. So that is one. Secondly, even let's say while you were in studying law in your law school, you thought you want to become a litigation lawyer. That does not mean that you cannot become a corporate lawyer after you graduate, and vice versa. So you can switch from aspiring litigation lawyer to an aspiring corporate lawyer, and vice versa whenever you want. And that switch can even happen after you enter the profession. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 साल corporate lawyer बन लिया तो आप litigation lawyer नहीं बन सकते हो, या आपने 2 साल litigation practice की तो आप corporate practice में नहीं आ सकते हो. Of course, there will be certain challenges, learning challenges, practice challenges, but that switch is always possible. And a lot of times that switch is always feasible. कई बार हमको लगता है ना कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो from a professional perspective it is always possible. मतलब being a lawyer, and I want to sort of not overemphasize, but this is true, it's not a rocket science. Legal profession is very, very simple. It's very, very uncomplicated. The only thing is required, you have to be very, very patient and keep learning, because कानून आते जाएंगे, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा. अगर कानून नहीं भी आ रहे हैं तो आपको उसी एग्जिस्टिंग कानून पे अलग अलग जजमेंट्स आते रहेंगे. तो यू नीड टू कीप रीडिंग, जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, and then the field is open to you. I am a corporate lawyer, but that does not mean कि मैं litigation, and I deliberately don't do hardcore civil and criminal litigation.
I still work on corporate litigation matters. So any litigation with respect to companies law related matters goes to NCLT, National Company Law Tribunal. And in 2016 there was a new law regarding insolvency and bankruptcy. It was IBC, Insolvency Bankruptcy Code. So I studied that, I became an insolvency professional, and now I'm comfortable handling insolvency matters before NCLT. Now that is pure play litigation only, but different from typical civil and criminal litigation. Right. तो आप सम एंड सब्सटेंस ये है कि आप कॉर्पोरेट लॉयर हो, आप लिटिगेशन लॉयर हो, आप साथ में दोनों भी कर सकते हो. आई हैव सीन लॉट ऑफ लिटिगेशन लॉयर्स who do handle good corporate work, and they are very, very competent and they are very, very effective. And I've seen corporate lawyers who are able to handle litigation work. Okay. And there's always situation where you are a pure play corporate lawyer and a pure play litigation lawyer. Okay. So field is very, very wide. Okay. आप खुद से डिसाइड कर सकते हो. You can keep experimenting. मतलब ऐसा नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट करो, बट करियर के शुरुआत में 3 साल 4 साल you can keep experimenting. There could also be a third option जहाँ पे आपको टिपिकल कॉर्पोरेट लॉ फर्म में नहीं जाना है, आपको टिपिकल लिटिगेशन प्रैक्टिस नहीं करनी है. यू कैन जॉइन अ कंपनी एज एन इन हाउस लॉयर, जहाँ पे यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट देम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ. You generally need to advise the company on legal matters, whether their compliances are in place or not. In case matter requires briefing a litigation lawyer, you are the channel of communication. So you are head of a particular function. At the same time, you are not really very deep into litigation or into corporate practice. Okay. So that is one avenue open for lawyers these days. Okay, that's great. So there is a lot that you can do, right? Different professions, you can also switch and move to different absolutely. fields, right? Actually, I never knew this was so flexible, but good to know. So my next question is, and you can answer this briefly, and this is because I get a lot of questions from students or from different fields. ये अच्छी internships मिलती कैसे? Like how do you get them? देखिए, अच्छी internship मिलना honestly is very difficult. अब उसमें depend करता है कि what do you call as अच्छी internship, and I'll tell you why. See, I have interned in a lot of places. I have seen a lot of interns coming to our office as interns. अब अच्छी internship की परिभाषा depend करेगी आप चाहते क्या हो. For a lot of law students, अच्छी internship would mean working with a large, fairly known law firm, a bigger law firm, the top 5, top 6 or top 10. A lot of times, yes, that perception is true कि वो अच्छी internship होगी, but कई बार क्या होता है कि आपका learning experience उतना अच्छा ना हो. ठीक है. For me, अच्छी, या अगर मुझसे पूछोगे कि भाई अगर आप अच्छी इंटर्नशिप की बात करते हो, अच्छी इंटर्नशिप मेरे हिसाब से वो होती है जहाँ पे आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिले और आपको एक्सपोजर ठीक ठाक मिले. बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर एन इंटर्न, यू आर नॉट अ लीगल प्रोफेशनल, तो आपका जो जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो लॉयर में नॉट बी कंफर्टेबल गिविंग यू कंप्लीट चार्ज ऑफ द मैटर्स. बट अगर आपको सफिशिएंट एक्सपोजर मिल रहा है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, that is a good internship. Okay. So let's say, for example, I've seen so many interns coming to our office जहाँ पे they have worked with fairly big law firms, very well known law firms, but that's not the case always. But कुछ cases में उनकी जो experience था या knowledge थी थोड़ी सी shallow थी. Okay. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें उनकी नुकसान था. देखो, जब हम किसी law firm का approach करते हैं, मुझे नहीं पता होता है कि वहाँ पे मुझे एक्सपोजर कैसे मिलेगा. दी फर्स्ट फिल्टर फॉर मी इज कि क्या ये फर्म नोन है. सो दैट इज द ऑब्वियस फिल्टर. तो मैं इस उम्मीद से एज एन इंटर्न मैं उस उम्मीद से जाता हूँ कि वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा एक्सपोजर आएगा. बट हो सकता है कि वो 90% केसेस में अच्छा हो, 10% केसेस में हो सकता है थोड़ा मैकेनिकल हो जाए. कि आप यू आर वन ऑफ द इंटर्न्स इन 10 इंटर्न्स और आपको शायद उतना ध्यान ना दे पाए जिस पार्टनर को आप रिपोर्ट कर रहे हो या जिस सीनियर को आप रिपोर्ट कर रहे हो. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर अच्छा का जो क्राइटेरिया है वो लॉ फर्म का नाम है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ वेरी वेरी नोन लॉ फर्म. उसके 2-3 रीजन है. मतलब ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेंट है उसका कोई दोष है या उसकी कॉम्पिटेंसी में वो है. बट प्रॉब्लम क्या होती है कि द बिगर लॉ फर्म्स विल टेंड टू टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप टियर कॉलेजेस. तो अब इतने सारे लॉ स्कूल्स हैं इंडिया में, अब तो धीमे धीमे और बढ़ रहे हैं. तो अगर हर एस्पिरेंट चाहेगा कि मैं टॉप टियर लॉ फर्म में चला जाऊं तो उसके लिए वो डिफिकल्टी है. बट एज लॉन्ग एज यू आर ओपन कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, बिकॉज शुरुआत में द क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप विल मैटर अ लॉट. तो अगर आप अपने नेटिव प्लेस में, लेट्स से यू बिलोंग टू अ टियर 2 सिटी ऑल्सो या टियर 3 सिटी या टियर 1 सिटी, अगर आप अपने नेटिव प्लेस में किसी
अच्छे ऐसे, आई मीन ऐसे अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत फ्लैशी ऑफिस हो, ऐसा इंटर्नशिप जहाँ पे आपको सीखने को मिले, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको, अगर आप लिटिगेशन में तो आपको फाइल पढ़ने का मौका मिले, आपको साथ में कोर्ट जाने का मौका मिले, ऐसा ना हो कि आपके सीनियर कोर्ट जाके आर्ग्यू कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के केवल टाइम पास कर रहे हो, या आप पूरे दिन रिसर्च कर रहे हो. सी, रिसर्च करना इज ऑल्सो वेरी गुड, बट यू शुड लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स. आप रिसर्च भी सीखोगे, आप थोड़ा कोर्ट क्राफ्ट सीखोगे नहीं, बट आप देखोगे, बिकॉज इंटर्नशिप में आपके लिए सीखना उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए देखना भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप देखोगे, आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो फॉर मी इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट टू लर्न, बट ऑल्सो टू डिसाइड कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो या क्या करना चाहते हो. कई बार ये होगा कि आपको इंटर्नशिप से समझ में आ जाएगा कि यार आई एम नॉट कट फॉर लेट्स से कॉर्पोरेट लॉयर बिकॉज इट्स अ डेस्क जॉब. आई नीड टू I want thrill of going to the court every day. कि मैं डेली कोर्ट में जाके बहस करूं. इफ यू आर कॉर्पोरेट लॉयर आपको वो चांसेस नहीं मिलते. यू आर नॉट वर्किंग इन दैट फील्ड. तो आपकी इंटर्नशिप आपको वो गाइडेंस दे देती है. और अच्छी इंटर्नशिप एज आई सेड कि यू हैव टू कीप ट्राइंग. कई बार ये होता है कि, एंड ये थोड़ा सा अजीब ट्रेंड है, आई वोंट से अच्छा ट्रेंड है, गलत ट्रेंड है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ इंटर्नशिप पर फोकस कर रहे हैं. जैसे हमारे टाइम पे, एंड आई एम नॉट वेरी ओल्ड कि मैं कह रहा हूँ मेरे दादा के टाइम पे, बट एक ट्रेंड था कि हम लोग 1 महीने या 1.5 महीने फोकस करते थे कि वी जॉइन अ पर्टिकुलर ऑफिस. आज की डेट में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जहाँ पे एस्पिरेंट्स आर जॉइनिंग मल्टीपल लॉ फर्म्स. कि अगर आपका 2 महीने का या 1.5 महीने का विंडो है, ब्रेक है, तो आप चाहोगे मैं 2-2 हफ्ते की 3 इंटर्नशिप कर लूँ. क्वांटिटी में डेफिनेटली इट इज गोना हेल्प यू, बट क्वालिटी वाइज, लर्निंग एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा आई फील कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो प्लस दूसरा क्या होता है कि जब आप इंटर्नशिप करते हो, आप किसी जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा रहते हो, तो आपका उस नेटवर्क में थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो, आई यूज्ड टू आई इंटर्न विद अ लिटिगेशन लॉयर, एंड while working with that lawyer, he himself made me interact with other lawyers also. So my next internship actually automatically came organically from my connection with no networking. Okay. तो आपको समय मिलता है तो आपको एक तो नेटवर्किंग का ऑप्शन मिल जाता है थोड़ा सा. यू स्टार्ट सीइंग पीपल, you forge your own relationships, and that's how it works. तो अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, बट अच्छी का आपकी परिभाषा अपने आप से डिसाइड करो. अगर आपकी परिभाषा ये है कि मुझे टॉप टियर लॉ फर्म में जाना है, तो डिफिकल्टी मतलब ऐसा नहीं है कि वहां भी आपको नहीं मिलेगी. यू कीप ट्राइंग, यू डिमॉन्स्ट्रेट योर क्वालिफिकेशंस. अगर आपने लेट्स से आप टियर 2 कॉलेज से भी हो या टॉप 10 में नहीं हो, बट यू हैव डन गुड मूट कोर्स, या आपके पास अच्छे आपने पेपर्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, तो यू कैन ऑलवेज पॉलिश योर सीवी, कीप सेंडिंग एप्लीकेशंस. कुछ डायरेक्शंस आएंगे, कुछ कॉन्फर्मेशंस आएंगे, बट वो होल्ड पे रख दिए जाएंगे. बट यू हैव टू कीप ट्राइंग. अगर नहीं मिल रहा है टॉप टियर में या किसी बड़ी लॉ फर्म में या किसी नॉन लॉ फर्म में, यू डोंट हैव टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी. आप किसी छोटी जगह चले जाओ, कुछ सीखोगे, कुछ सीखने को मिलेगा. हो सकता है कि वहां से आपका नेटवर्क से आपको कुछ एडवांटेज मिल जाए. तो वो मेरे हिसाब से दैट शुड बी द अप्रोच. ग्रेट. वाइज एडवाइस फॉर आवर न्यू folks. So you founded this firm called Ream Legal, right? So tell us a little bit about it and your philosophy behind founding the firm, and also a little bit about your client composition. Sure. So I started Ream Legal in 2014, February, and before that I have worked with different law firms. So my whole objective of starting this firm was to, in fact, जब मोस्ट ऑफ द लॉयर्स, हर लॉयर में कीड़ा होता है कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना. मतलब दैट इज द अल्टीमेट ड्रीम, पिनिकल. हाँ, कि वंस यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट ऑफिस, दैट्स द पिनिकल फॉर अ लॉ फर्म. इट इज नॉट, बट या अ लॉट ऑफ लॉयर्स परसीव कि दैट इज द अल्टीमेट स्टेज. वो कीड़ा मेरे अंदर भी था. बट क्या होता है ना, कई बार देन द क्वेश्चन इज कि अगर वो दैट इज द एस्पिरेशन, व्हाई नॉट ऑल द लॉयर्स एंड अप स्टार्टिंग देयर ओन लॉ फर्म. क्या होता है कि जब आप प्रोफेशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेट्स से इफ आई कंटिन्यूड वर्किंग विद अ लॉ फर्म फॉर 10 years, उस टाइम पे द कंफर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कंफर्ट ऑफ वर्किंग विद अ प्लेस, एंड ऑफ कोर्स द कंफर्ट ऑफ ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन, वो फिर आपके जो एस्पिरेशन है उसको थोड़ा सा कवर कर देता है. बट फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट प्रिटी अर्ली. जब तक वो कंफर्ट आ पाता कि अब मैं इस लॉ फर्म में हूँ, मैं अगले 10 साल यहीं पे रहूंगा, before that I was pretty much clear कि नहीं, I have to start my own. And since then, in February 2014, I started this own law firm. और खुद से स्टार्ट करने का सिंपल लॉजिक था
टू गो इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं था कि आई वॉज फेड अप विद द अदर प्रैक्टिसेस या आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. मतलब एक बहुत फैंसी आंसर ये भी हो सकता है, आपको दे सकता हूँ कि मैं दुनिया बदलने चला था, कि मैंने देखा कि ABC लॉ फर्म में ये कमियां थी, मैं उनको सही करके अच्छी आइडियल फर्म बनाना चाहता हूँ. That's not the case. Obviously, we want to build an ideal organization. All organizations are, in their perspective, ideal only. But मेरा simple logic ये था कि independent होना था, and I thought it was the right time, so I went independent. Okay, great. So that was about, basically firm का. The kind of work remained primarily the same. I used to work in general corporate practice, documentation, transactional advisory, advising clients on their, transactions like merger acquisition, joint ventures, fund raise वगैरह. तो इसी चीज़ पे मैं काफ़ी समय से, जब दूसरी लॉ फर्म्स में काम करता था, तो मैं इसी चीज़ पे काम करता था, और आई कंटिन्यू टू हैंडल द सेम काइंड ऑफ वर्क एट रीम लीगल ऑल्सो. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन माई अर्लियर ऑर्गेनाइजेशंस आई वॉज पार्ट ऑफ अ टीम, कि हम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम के पार्ट होते हैं. जैसे दिस टीम विल हैंडल ओनली बैंकिंग मैटर्स, दिस टीम विल हैंडल ओनली M&A मैटर्स. Coming at Ream Legal, starting Ream Legal, that compartmentalization changed. फिर you can't refuse. अब आपके जैसे आपने अपनी फर्म स्टार्ट की, you are a lawyer, client will come to you कि I know you're a corporate lawyer, या client को नहीं भी पता होगा, client will say कि भाई I have a transaction जहाँ पे I'm raising funds, I'm taking loan from a bank, right? For अब उनके जो भी banking documentation है, finance documentation है, I want your advice on it. You can't tell your client कि no, I have, for last 5 years, I've only done, M&A kind of work. I will not be able to do it. Of course, you have to inform your client that, this is your experience has been, so that if client still persists, तो वो client के call होगा. But beyond that, if a client is coming to you for advice, you have to take up that matter. Right. Not at the cost of, to detriment of the client ki, for example, if I am not trained as a banking lawyer, that should not, affect my client's interest. But अगर आपको लगता है कि आप capable हो और आपने कर रखा है और आप कर लोगे, it is always good to do that. And that's how, when I started out Ream Legal, we have been doing all kind of work. So despite the fact that I was part of a particular team in my previous organization, now fortunately it's been 10 years and we have been doing work across the sectors, across, work profiles. So we have worked for clients in, let's say, technology sector, the old age businesses like real estate, infrastructure, power. Plus, because coincidentally पिछले 10 साल में startup sector भी prominence में आया है या और grow कर रहा है, तो a lot of clients are, from our perspective, they are startups. तो उनके जो भी new age sectors होते हैं, e-commerce हो गया, fintech हो गया, insurtech हो गया, traditional, software businesses या कोई product है, software product. So we end up advising clients on all the gamuts, from the time they start and for their entire life cycle. So that ways, we have a mix of client. 50, I would say 60-40 होगा या 50-50 होगा, which comprises of, traditional larger businesses plus equal proportion of clients who are, startups or SMEs. Right. So these startups, are they mainly technology startups or a mix of like startup? It could be anything. हाँ, it could be anything actually. मतलब एक नोशन ये है कि जब स्टार्टअप्स की बात सोचते हैं हमको लगता है कोई टेक्नोलॉजी है, बट बहुत सारे, मतलब आप ये सोचो किसी ने अगर सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया है, फ्रेश स्टार्ट किया है, टेक्निकली इट्स अ स्टार्टअप ओनली. तो सिमिलरली इन आवर केस आल्सो वी हैव अ मिक्स ऑफ क्लाइंट्स. तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर दोज हु हैव सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एलिमेंट टू देयर बिजनेस, या तो वो IT से रिलेटेड होगा या वैसे होगा. But we do have some startups, some new age businesses who are not really focused on technology, but they have a new business or a new business model or a new way of doing existing business. Right. अब trading सालों से होती आ रही है, मतलब सिल्क रूट के टाइम से अभी तक ट्रेडिंग इज अ मोस्ट कॉमन प्रोफेशन. बट ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग के मैकेनिज्म चेंज नहीं हुए हैं. एवरी एंटरप्रेन्योर विल हैव हिज ओन आइडिया कि मैं ट्रेडिंग को ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे मार्जिन ऐसे इंप्रूव हो सकते हैं. तो कई बार आप उस ट्रेडिशनल बिजनेस में टेक्नोलॉजी को लाके अपने प्रोसेस इंप्रूव कर लेते हो या अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेते हो. तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी होती है. मतलब क्लाइंट जब आता है तो वो प्योर प्ले नॉन टेक भी हो सकता है, और इट कुड बी टेक डिपेंडेंट और टेक हैवी, ईदर वेज. राइट. सो डज इट मेक एनी डिफरेंस? कोई फर्क पड़ता है इससे आपकी एडवाइस पे या लीगल रिक्वायरमेंट्स पे कि क्लाइंट क्या है, किस बिजनेस में है? हाँ, देखिए लीगल एडवाइस पे it won't matter a lot. It might matter, but general answer है कि उतना फर्क नहीं पड़ता है. But
लीगल रिक्वायरमेंट से फर्क पड़ जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर बिजनेस इज टेक हैवी. अब टेक हैवी में फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील, लेट्स से वी टॉक अबाउट D2C प्रोडक्ट. आज की डेट में D2C इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट कैटेगरी. अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक कंपनीज या क्लोथिंग वेयर आर इनटू D2C, कि वो अपना कोई शॉप नहीं है बट दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद कस्टमर्स, कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है. तो उस केस में बिकॉज आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर डेटा, बिजनेस डेटा. तो जो पहला डिफरेंस आएगा वो सिंपल ये होगा कि यू आर अ डेटा एग्रीगेटर या डेटा प्रिंसिपल या डेटा सब्जेक्ट एज वी में डिफाइंड अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. तो वहां पे फर्क आ जाता है कि आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है तो आपको 90% एडवाइस तो जो हर स्टार्टअप को चाहिए होती है आपको भी चाहिए होगी. बट इन योर केस यू ऑल्सो नीड टू हैव कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग, कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके हाउ कैन यू यूज इट, हाउ यू कैन नॉट यूज इट, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कंसेंट, आपको कंसेंट कैसे लेनी है, कंसेंट अगर किसी ने दी है तो कैन दैट पर्सन विड्रॉ दैट कंसेंट. तो कुछ समय पहले तक, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक, it was pretty open. The only law that dealt with this technology was Information Technology Act of 2000. But in 2023 the Digital Data Protection Act came into force. और उसके बाद से डेटा के अराउंड काफी सेंसिटिविटीज बढ़ गई है. सेंसिटिविटीज बढ़ गई है, कंप्लायंसेस थोड़ी सी चेंज हो रही हैं. अ लॉट ऑफ टेक बिजनेसेस, सबकी वेबसाइट होती है, सबका मोबाइल ऐप होता है, तो आपकी प्रिवेसी पॉलिसी होनी चाहिए या होती है. तो उस केस में what you can do, how you handle data, how you collect data, तो आपकी privacy policy becomes a very very important document for you. क्योंकि पहले क्या होता था ना कि and this is matter of convenience and cost also, कि बहुत सारे entrepreneur startup जब करते थे तो वो थोड़ा सा, and we all do it, कि उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया कि अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर की प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स ऑफ यूज ये हैं, लेट मी सॉर्ट ऑफ पिक इट अप फ्रॉम देयर, थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया एंड वी स्टार्ट यूजिंग. बट अब वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लेना होता है कि बिकॉज स्मॉल न्यूआंसेस could change how the data protection act will apply to you. तो वो फर्क है. तो to answer your question, 90% will remain the same, but 10% will depend upon कि exactly आपका business क्या है. So for example, अगर कोई startup है, they are into EV manufacturing, EV vehicle manufacturing, या let's say they are into some kind of green hydrogen setup and all, तो वहाँ पे जो आपके specific sector के laws होंगे वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. अदरवाइज 70, 80, 90% एडवाइस और लीगैलिटीज अराउंड विल रिमेन द सेम. ओके, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे. हाँ. एक स्टार्टअप फाउंडर और फाउंडर्स की लाइफ में जब वो शुरू करते हैं, सो टॉप 3 या टॉप 4 लीगल हैसल्स क्या होती हैं जिसको लेके आपके पास आते हैं? हाँ, तो आई थिंक लीगल हैसल्स मे नॉट बी द राइट टर्म, बट लेट्स से लीगल एम्बिग्यूटी इज अ क्वेश्चन जो होते हैं. सबसे पहला तो ये होता है, देखिए इनफैक्ट बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, दो चीज होती हैं. कुछ फाउंडर्स आर स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड. व्हेन आई से सोफिस्टिकेटेड, नॉट इन टर्म्स के सूट बूट में आ रहे हैं, बट उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान ले रखा होता है या उनको प्रायर एक्सपीरियंस होता है. क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप इंडस्ट्री से आके फिर स्टार्टअप कर रहे होते हैं. कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फ्रेश नए नए स्टार्टअप कर रहे होते हैं. तो अगर आपके पास थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस या ज्ञान है तो लाइफ इज स्लाइटली सिंपल फॉर यू. अगर नहीं है, इट्स नॉट कि कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट है, यू नीड टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर यू डिसाइड. तो पहला जो पॉइंट होता है जहां पे पॉन्डरिंग स्टार्ट होती है वो होता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल बिजनेस सेटअप. अब आप बिजनेस आप तो स्टार्ट करते हो तो आपने सुना होगा कि यू कैन डू एज अ प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, या आपने कहा पार्टनरशिप बना लो. फिर एक टर्म आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP. फिर लोग कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप कंपनी सेटअप कर लो. कंपनी में भी दो आता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी. तो एक्चुअल पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, तो व्हाट शुड बी द आवर बिजनेस स्ट्रक्चर. हमको LLP स्टार्ट करना चाहिए या कंपनी स्टार्ट करना चाहिए. तो उसमें बेसिस द फीडबैक वी गेट फ्रॉम द फाउंडर्स कि आपका विजन क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है. कई बार क्या होता है कि फाउंडर्स को लगता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस बिल्कुल सही है, बट उनका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है टू स्केल अप वी विल नीड एक्सटर्नल फंड्स, कि आपको फंड रेज करना ही है. तो जैसे ही आपका वो क्राइटेरिया आता है तो आर ऑब्वियस रिस्पॉन्स टू दैट इज कि द बेस्ट और द मोस्ट कंड्यूसिव व्हीकल फॉर यू इज टू सेट अप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सिमिलरली कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे आपको एक्सटर्नल कैपिटल की उतनी जरूरत नहीं होती है, बट यू स्टिल वांट ऑल द एडवांटेजेस दैट अ कंपनी वुड ऑफर, कि लिमिटेड लायबिलिटी हो, प्रोफेशनल सेटअप दिखे. तो फॉर एग्जांपल अब लेट्स से 3 आर्किटेक्ट्स हैं,
उनको अपनी एक कंसल्टिंग या एडवाइजरी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बट उनको पता है कि गोइंग फॉरवर्ड दे विल नेवर रिक्वायर एक्सटर्नल फंडिंग, मतलब उनके प्रैक्टिस में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर नहीं आएगा. उनके केस में द आंसर वुड बी सिंपल कि फॉर यू गाइज an LLP is the best. It has slightly lesser compliances as compared to a private limited company, but in terms of advantages, it's almost the same. तो उस पे डिपेंड करेगा आपका एग्जैक्ट आंसर कि क्या होगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट द फाउंडर्स टिपिकली ग्रैपल विद. सेकंड इज what kind of licenses or registrations specific to that sector do we require. तो कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होते हैं जो आपको इरिस्पेक्टिव आप कुछ भी काम करो आपको चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल आपको पैन चाहिए ही होगा, आपको टैन चाहिए ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल टर्नओवर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होगा. ठीक है, अगर आप ऑफिस सेटअप किया है तो आपको शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होगा. तो सम ऑफ दीज आर वेरी वेरी कॉमन. कुछ ऐसे होंगे जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक होंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एनबीएफसी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आरबीआई के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा. या लेट्स से आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको लेबर लॉज में जाके कंप्लाई करना होगा, आपको फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर लाइसेंस चाहिए होगा. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग विच माइट हैव अ इम्प्लीकेशन अंडर द एनवायरमेंट लॉज तो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए होगा. तो वो सारी चीजें होती हैं. तो 90% या कुछ चीजें ऐसी जो अक्रॉस एप्लीकेबल होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेंगी. और जो तीसरा आता है वो बेसिकली होता है कि अब एंटिटी बन गई, बिजनेस लाइसेंस वगैरह आ गए, नाउ हाउ डू वी गो अबाउट आवर डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन में फिर चीज आती है कि आप किस पर्सपेक्टिव सोच रहे हो. एक आपका थर्ड पार्टी फेसिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर फेसिंग बिजनेस में हो तो आपका कस्टमर के साथ क्या अरेंजमेंट होगा. लेट्स से यू आर सेलिंग ऑन योर वेबसाइट, तो आपके वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर सेलिंग. वेरी सिंपल कि आपकी एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, कि किसी ने सामान खरीदा तो एक्सचेंज कब हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिफंड क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ द पेमेंट फेल्स, तो आप रिटर्न करोगे या बैंक रिटर्न करेगा. इट्स मतलब लीगली दिस इज ऑल सेट आउट, बट यू हैव टू मेंशन ऑल दिस इन द कस्टमर फेसिंग डॉक्यूमेंटेशन. सिमिलरली जब आप इंटरनली अपना सेटअप करते हो तो आप एम्प्लॉयज भी इंगेज करोगे. लेट्स से आपने कंसल्टेंट्स इंगेज किए तो उनके साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए. एंड व्हेन वी से डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसका सिंपल रीजन ये, इट्स नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट. कोई लॉ नहीं कहता है कि आपको कस्टमर के साथ अग्रीमेंट करना है या एम्प्लॉय के साथ करना है. इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस एंड टू मिटिगेट योर रिस्क. फॉर एग्जाम्पल जब आप एम्प्लॉय के साथ अपने अग्रीमेंट करते हो तो द टू एरियाज वेयर you have to focus and sort of be very very sure is one, intellectual property and confidentiality, because आपका business data is belonging to the business and lot of times your business is entirely dependent upon the data. Now if an employee sort of commits an act or an omission as a result of which data gets compromised, तो उस केस में you should have recourse under the document. Similarly जो आपका intellectual property वाले laws होते हैं, वो एक basic theme ये है, whoever is creating something एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई मैंने लेट्स से प्रोडक्ट क्रिएट किया, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, या इवन इफ आई राइट अ रिपोर्ट इन माई नेम यूजिंग अ पेन एंड पेपर और ऑन अ लैपटॉप, बाय डिफॉल्ट आई एम द ओनर ऑफ दैट रिपोर्ट और दैट प्रोडक्ट. सो देयरफॉर योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड से that all the IP that an employee is generating in the course of employment will belong to the organization or the company. तो उस वजह से आपका इन दो एस्पेक्ट्स की वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. प्लस फिर आप सोचते हो कि अच्छा एम्प्लॉयज हैं, आई एम अ स्टार्टअप, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव देम मार्केट सैलरीज, लेट मी कॉम्पनसेट देम थ्रू ईसॉप्स. तो ईसॉप्स रिलेटेड डिस्कशन होता है. तो वहाँ पे काफ़ी सारे फाउंडर्स जो स्टार्टअप्स के होते हैं वो दे कम टू अस फॉर एडवाइस कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे ऑफ sort of executing and implementing the ESOP plan. So these are the areas. Plus, when a lot of times you don't have in-house capability of everything. कि आपके पास बिजनेस आइडिया था, आपको मार्केटिंग करना आता है, बट प्रोडक्ट के लिए आपको किसी आईटी कंपनी के पास जाना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल मेरा एक ऐप है जहाँ पे आई एम कोलेटिंग न्यूज़, तो मुझे पता है कि मुझे उस ऐप को कैसे मार्केट करना है, मोनेटाइज कैसे करना है, बट आई एम नॉट अ टेकी. सो आई विल गो टू अ टेक कंपनी जो मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं. I have to engage with them. तो वहाँ पे you should have a detailed proper agreement with your vendor, IT vendor, covering aspects of confidentiality, IP, who owns the data, what will be the terms, तो वो सारी चीजें. तो इन तीन aspects पे it becomes very important और these are very very common for all the founders. Right. और थोड़ा सा mature होते हैं तब
फॉर एग्जाम्पल किसी को फंड रेज करना है, या लेट्स से किसी को किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, लेट्स से समवन इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया, और अ लॉट ऑफ टाइम्स कंपनीज वांट टू सेट अप प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया. तो वो सारी चीजें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट्स व्हेन वी सॉर्ट ऑफ एडवाइस देम. Right. So, for startup founders or people who have just ventured into businesses and people who are taking like investor money, right? वो क्या litigation mode में चला जाता है कभी, या फिर आप उसमें arbitration करते हैं? Like how do you kind of manage that? देखिए, litigation mode में जाने की probability, and as lawyers we always look at that edge case. अगर 0.1% probability भी है तो उसको address होना चाहिए. तो नॉर्मली लिटिगेशन मोड में नहीं जाता है, बट ऑफ कोर्स रिसेंटली आपने मीडिया में देखे हैं कि इंस्टेंसेस हो रहे हैं जहां पे इन्वेस्टर्स हैव बीन सुइंग फाउंडर्स फॉर वेरियस रीजंस. तो उस केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि देखो, अब मैटर आपका लिटिगेशन में जाएगा या आर्बिट्रेशन में जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके अग्रीमेंट में क्लॉज क्या लिखा है. इफ यू हैव एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो वो स्ट्रेट अवे कोर्ट में नहीं जाएगा, आप आर्बिट्रेट करोगे एंड देन दैट्स हाउ द मैटर विल बी रिजॉल्व्ड, अनलेस the matter involves some kind of criminal implication. अगर कोई, for example, there's a instance of fraud या cheating which can be covered under criminal laws, तो फिर arbitration तो parallel ही चलेगा, you can still initiate proceedings under criminal laws. But अगर matter is purely civil, तो फिर आप arbitration में जाओगे. तो instances होते हैं, but ultimately arbitration में litigation में जाना पड़े, they are rare instances. मतलब जब something has been grossly wrong. But otherwise क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, resolve हो जाती हैं, कहीं पे आर्बिट्रेशन हेल्प करता है, कहीं पे मीडिएशन हेल्प करता है. कई बार ऐसा भी होता है जहां पे जस्ट टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द बिजनेस यू साइलेंटली हैंडल इट. फॉर एग्जांपल, देयर आर 4 फाउंडर्स इन अ वेंचर जहां पे इन्वेस्टर ने पैसे डाल रखे हैं और किसी एक फाउंडर ने गड़बड़ किया होता है. तो आप फिर इन ऑर्डर टू अवॉइड मीडिया ग्लेयर एंड ऑर्डर टू अवॉइड बैड PR, यू सिंपली सॉर्ट ऑफ म्यूचुअली डू एन अरेंजमेंट जहां पे द defaulting founder is asked to leave so that business can continue, because when you're dealing with individuals, so not every individual thinks on the same footing. तो उस वजह से ये चीज आती है. तो there are mechanisms, और इसी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे कि जो आपका इन्वेस्टर के साथ डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिकली शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि वहां पे लिखा होता है कि किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, और अगर कुछ ब्रीच होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. सो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ अ इन्वेस्टर रिलेशनशिप, योर शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, आई वोंट से अच्छा या बुरा, इफ इट इज बैलेंस्ड, बिकॉज अच्छा बुरा तो बाद में टेस्ट होता है. इट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, जब तक आग नहीं लगी तब तक आप खोल के देखते भी नहीं हो. जब आग लगती तो आप देखते हो, देन यू रियलाइज कि अच्छा फोर्स मेजर या एक्ट ऑफ गॉड तो एक्सक्लूडेड था, मूवी बन जाती है. तो एग्जैक्टली ये चीज शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट भी होती है कि आपने साइन कर दिया, आप उसको उठा के रख देते हो, कभी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. बट जब जरूरत पड़े तो आपके पास वो होना चाहिए. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पार्टीज. मतलब इट्स नॉट कि इन्वेस्टर के पास राइट नहीं होना चाहिए. whoever is sort of committing a wrong, your documentation should be such that you have mechanism to address it. अब वो address आप फायर करके करोगे, या उसको रिजाइन करवा के करोगे, या आप कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन में लड़ाई करोगे, या मीडिएशन में जाके रिजॉल्व करोगे, इट विल ऑल डिपेंड कि आपके लेजिस्लेटेड क्या है उस डॉक्यूमेंट में. तो फॉर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव या फाउंडर हु हैव रेज्ड मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. So what, like I've heard about this founders agreement thing, right? हाँ. I'm sure you do this, so yes. Can you please elaborate a little bit for everyone? देखिए, founders agreement आप ये मान के चलो, there's a broad category called shareholders agreement. अब shareholders agreement is simple agreement between the shareholders of the company and the company. अब in a situation where the only shareholders are founders, so we call it a founders agreement, because all your shareholders are founders. So instead of calling a shareholders agreement, you can call it a founders agreement. But let's say there are 3 founders and there are 2 investors. तो आप founders agreement तो बोलोगे नहीं. That's when you start calling it a shareholders agreement. तो only difference is जब तक कंपनी में external parties नहीं आती हैं, तो आप shareholders के बीच जो agreement करोगे, that is a founders agreement. जैसे ही external parties आएंगी, it could be investor, it could be कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने एडवाइजर को कुछ इक्विटी दे रखी है, तो टेक्निकली वो इन्वेस्टर नहीं है, बट ही स्टिल अ शेयर होल्डर. तो वो जब आप अग्रीमेंट करोगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. सो बट इसमें at what stage are these made?
जब कंपनी सेटअप होती है तभी कर लेते हैं या एक स्टेज पार होने के बाद होता है? देखिए आइडियली अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच लॉ डिक्टेट्स, कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि आपको शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट करना चाहिए या को फाउंडर्स अग्रीमेंट करना चाहिए, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ प्रूडेंस पर्सपेक्टिव अर्लियर द बेटर। जब तक आपने जैसे ही कंपनी सेटअप की है, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि आपका डिस्प्यूटेड डिफरेंस कब होगा। कई बार ये होता है कि आपका द फाउंडर्स में बी वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, बट मोमेंट थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग स्लाइटली मोर स्ट्रक्चरल, तब डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो द आंसर इज अर्लियर द बेटर। अगर आपको पता है कि आपका शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट है, इट इज एनविसाजिंग let's say 90% of situation, obviously we can't think about 99 or 100%, but कोशिश ये होती है कि हम broadly almost everything cover कर लें। तो earlier the better आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है, आप तब कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने अगर स्टार्टिंग में नहीं किया तो बाद में कभी नहीं कर सकते हो। यू कैन डू इट एनी टाइम। योर फाउंडर्स अग्रीमेंट कैन बी रिटन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट earlier the better। and when we say earlier is in reference to a dispute happening। dispute होने से पहले अगर है तो अच्छा है, बिकॉज उसके बाद dispute हो गया then you don't have anything to discuss। फिर आप एक्चुअल में क्या होगा, उस टाइम आपकी लड़ाई भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज जब आपका अग्रीमेंट होगा तब आप अग्रीमेंट के बेसिस पे नेगोशिएट करोगे या लड़ाई करोगे कि अग्रीमेंट के हिसाब से ए वाज सपोज टू डू दीज थिंग्स, ही डिड नॉट डू, नाउ प्लीज डिसाइड। जब आपका कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, ए कहेगा मुझे सब कुछ करना था और मुझे कुछ भी नहीं करना था, बी भी कहेगा मुझे कुछ नहीं करना था, इट बिकम्स लाइक अ हेडलेस फाइट। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यू कैन डू इट एज सून एज पॉसिबल। सो योर फर्म हैज बीन इन एग्जिस्टेंस अराउंड लाइक 10 years right now। So what is the trend you've seen? ये लीगल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, या लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि करना ही है अब तो, राइट? व्हाट इज द चेंज एवोल्यूशन दैट यू हैव सीन इन द लास्ट 10 odd years? देखिए जो मैंने एक्चुअल में पर्सनली नोटिस किया है, नॉट दैट आई एम अथॉरिटी, कि जो मैंने नोटिस किया वो जनरल ट्रेंड है, बट एक बेसिक ट्रेंड ये है कि अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी है। और अवेयरनेस एक तो बढ़ी है टीयर 1 सिटीज में, डेफिनेटली पहले भी थी। जो ट्रेंड नोटिस हो रहा है वो हो रहा है कि टीयर 2 सिटीज में भी अवेयरनेस काफी आ गई है। जो स्टार्टअप्स थे लेस इन सिटीज लाइक जयपुर, अहमदाबाद, जो ट्रेडिशनल मतलब स्टार्टअप्स वहां पे भी हैं, बट ट्रेडिशनल में देखते हैं स्टार्टअप की बात होती है तो हम बैंगलोर बॉम्बे की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग फ्रॉम दीज टीयर 2 सिटीज, जहाँ पे अहमदाबाद, जयपुर, सिटीज लाइक सूरत, मतलब गुजरात में काफी एक्टिविटी हो रही है। तो वहां पे भी क्या हो गया, अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड पीपल आर एक्चुअली कंसल्टिंग लॉयर्स, स्टार्टअप लॉयर्स फोकसिंग ऑन स्टार्टअप या कॉर्पोरेट लॉयर्स टू एडवाइज देम ऑन दीज बेसिक थिंग्स। उनको ये पता है कि थिंग्स कुड ग्रो वेरी बिग एंड देयरफॉर थिंग्स कुड गो साउथ वेरी फास्ट, तो दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड। तो एक ये चेंज है। दूसरा चेंज ये है, इवन इन टीयर 1 सिटीज अ लॉट ऑफ टाइम्स जो थोड़ी सी पुरानी वेंचर्स हैं, जो स्टार्टअप्स नहीं है बट वो एसएमईज अभी भी हैं, बिकॉज यू कैन बी एन एसएमई फॉर लेट्स से 10-15 years आल्सो, बेसिस योर स्केल एंड योर रेवेन्यूज एंड ऑल। तो एसएमईज में एक ट्रेंड ये आ रहा है कि जो पहले प्रोफेशनली लॉयर्स को कंसल्ट नहीं करते थे, एटलीस्ट कॉर्पोरेट लॉयर्स को, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ओवर देयर आल्सो, कि दे हैव बिकम मोर अवेयर। अब उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो रहा है कि उनका खुद का मार्केट बढ़ रहा है। जैसे लेट्स से इफ दे वर टू बी डीलिंग विद ओनली इंडियन क्लाइंट्स, तो कंफर्ट जोन होता है कि यार इंडियन क्लाइंट है, लड़ाई होगी, वी विल मैनेज, राइट? बट मोमेंट दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ऑफशोर क्लाइंट्स, तो वहां पे दे सी दोज क्लाइंट्स हैविंग अ लीगल टीम, तो यहाँ पे उनको लगता है कि हमारी भी लीगल टीम होनी चाहिए। एक तो शायद वो पोजिशनिंग का इशू हो सकता है, एंड सेकेंड दे ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड मेरिट, बिकॉज नो वन वांट्स टू हैव अनलिमिटेड रिस्क या अनअवेयर रिस्क। तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर को कट करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ SMEs looking for lawyers, and when I say looking for lawyers, looking for corporate lawyers, because क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल जो लीगल, आप सोचोगे लॉयर मतलब जो वकील साहब हैं, कोर्ट जाते हैं, तो एंड दैट इज, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी इंडिविजुअल, बट हमारा सबका यही था कि इफ अ लॉयर इज अ लॉयर, ही वुड नो एवरीथिंग। बट आप देखो डॉक्टर केस में भी नहीं होता है। आज की डेट में आपके न्यूरो के अलग होंगे डॉक्टर, नेफ्रो के अलग होंगे, इनफैक्ट न्यूरो में भी दे आर स्पेशलिस्ट एंड दे आर सुपर स्पेशलिस्ट। तो a lot of times the trend that we are seeing is that clients are looking for specialized professionals. So for example,
I do not handle hardcore taxation practice. We see a lot of clients who need, as part of corporate law also, they need taxation advisory. So we tell them ki boss, you need to check with a tax attorney or a chartered accountant who can take up these matters. And they appreciate that. They will not force you कि आप ही देख लो. कुछ समय पहले होता था कि आप ही देख लो, आप बता दो. वो चीज थोड़ी सी चेंज हो रही है. They are appreciating the fact that you need a specialist for a specialist job. Right. And that has made our life also easier. Right. Because हमको पता है कि there's a second eye looking at from a specialist perspective. So it's a good comfort. It's a good position to be. And from a client perspective, we are assured कि client is covered from all the bases. Right. So, I mean, obviously, running a legal firm is not like any other business where you solicit like clients, get business by marketing and everything. So, how do you get business? How does that work out? देखिए यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल हूँ. मतलब ओल्ड स्कूल मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम अ रिडंडेंट ऑब्सोलीट प्रोफेशनल, बट इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिसेस आई फॉलो स्लाइटली ओल्ड स्कूल. उसका सिंपल रीजन ये है, आवर प्रोफेशन इज गवर्न्ड बाय एडवोकेट्स एक्ट. वहाँ पे, एंड दैट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस, कि यू कांट सॉलिसिट वर्क, यू कांट मार्केट योरसेल्फ. सो I sort of strongly follow that. A lot of people follow it, a lot of people do not follow it, a lot of people are sticking by that rule. So I fall in the last category. I sort of follow it by the rule. I do not engage, I do not like to engage into any kind of marketing or business development practices. So to answer a question, most of my work, in fact I would say 100% of work comes through referrals. Okay. So most of our client will sort of refer a different client, and that is the most prominent source how we get work. The other source, and this is very interesting, a lot of times we get a lot of work from entities whom we have acted against in the past. Okay. So for example, I'm addressing Mr. A or ABC company as a client, and I'm negotiating against PQR. It will so happen that after a couple of months, PQR will approach us that, look, we are doing a different transaction and we want you to represent us. Okay. So these are the two sources where we sort of get clients. That is basic. In fact, अगर आप देखोगे तो typically as lawyers, we should not be even having detailed website also. Okay. So when I started out, this was 2014, I used to have one static page. Name of the firm and contact details. We did not even mention what our practice area is, what is the team size, team strength. But now we realize that a lot of, especially foreign clients, they were working with us, and a lot of times on the first call when they interacted, they somehow wanted to see our website. So then we, thought about it. We looked at, website of some of the other firms who are, pretty, known in the market. And then we realized, okay, let's widen the horizon a bit. So now we have a slightly more detailed website, not very, very detailed, still does not carry a lot of stuff that a prospective client would like to see. But yeah, it's better than the static one single page that we had earlier. Right. So, and that is how we basically get work. So matlab, I'm happy being old school in that sense. And the way it also helps is that I am slightly content kind of lawyer. So matlab, and again, I don't know if something, it's a negative trait or what. I'm not, in a position where I want to build 1,000 lawyer law firm, या मुझे इतना revenue चाहिए. After working for, these many years, as a person, I've become slightly more content. So I have enough work to keep me and my team busy for basic working hours a day. Right. Not that I'm passionate to work 18 hours a day. I'm not. Neither do I encourage my colleagues or my juniors to work for that long. So we have enough work to keep us busy for. हाँ मतलब उतना काम हो जाता है. Right. And that's how team is also happy. I also happy. I have time to devote to my family and also follow my personal pursuits. Like अब hobbies कुछ बार छूट जाती है बचपन में, जो आपका मन होता है आप नहीं कर पाते हो या वो होता है, तो उसके लिए थोड़ा समय मिल जाता है. And that's how it's working to my advantage. That's great. So I just, because हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके क्लाइंट्स की या anything that you experienced which taught you a lot that I should be doing this rather than this? Can you tell us a little bit? एक्चुअल में इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो बहुत सारी हैं. अब इस पॉइंट पे कौन सी सुनानी है मुझे खुद भी क्लिक नहीं कर रहा है.
बट एक कॉमन ट्रेंड या स्टोरी कह सकते हो, या एक कॉमन जो चीज़ नोटिस की है और जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला है, वो ये है कि जब आप किसी से बात करते हो एज अ लॉयर, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट और व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग फॉर योर क्लाइंट अगेंस्ट अ काउंटर पार्टी, यू हैव टू बी सो वेल प्रिपेयर्ड कि अगर आपसे आपका कोई क्लाइंट कुछ भी पूछे या सामने वाला कुछ पूछे इन व्हाट यू आर सेइंग, you should be in a position to defend it. And why I'm raising this point, not raising or rather suggesting or mentioning is कि जो एक common चीज़ मैंने experience की है, जो बहुत frequently होती, not in 100% cases, but बहुत सारे cases में, कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, document negotiate करते हैं, तो अगर मैंने या सामने वाले ने question पूछा, तो एक common चीज़ आती है, this is standard. And that is what I have started hating. मतलब होता है ना, कुछ चीज़ there is nothing wrong in that, but the moment someone says this is standard, तो आपके कान को बहुत खराब लगता है कि यार if you want to retain a particular cause, if you want to defend a particular concept, please suggest a logic. आप logic दे दो, अगर सही है मैं convinced हूँ, मैं मान जाऊंगा. I'm not there to fight a battle, right? But जब आप जैसे बोलते हो standard है, इस वजह से मैं agree नहीं करूंगा, that is where it becomes challenging and it becomes very very disappointing. फिर आपको लगता है कि आप बात ही क्यों कर रहे हो, राइट? बिकॉज आप कोर्ट में आप जाओगे, लिटिगेशन लॉयर में ये चीज कभी नहीं होती है. योर लिटिगेशन एडवर्सरी विल नेवर से दिस इज स्टैंडर्ड एंड देयरफॉर द जज शुड ग्रांट योर रिलीफ. वो हर बार हर मैटर पे फ्रेश बहस करेगा, वो आपको फ्रेश तर्क देगा कि इस मैटर में मेरा क्लाइंट सही क्यों है और आपका क्लाइंट गलत क्यों है. जो प्रोफेशन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लॉयरिंग, इसमें ये चीज उतनी कॉमन नहीं है. यहाँ पे आपको ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है दैट दिस इज स्टैंडर्ड. अब उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं. एक ये कि कई बार द अदर पर्सन इज अ पोजीशन टू डोमिनेट. अब माय क्लाइंट इज लेट्स से 100 रुपये रेवेन्यू कंपनी एंड दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद लेट्स से करोड़ रुपये रेवेन्यू कंपनी. तो एक बैलेंस ऑफ पावर या कन्वीनियंस उसके फेवर में है, तो वो टर्म्स डिक्टेट करेगा. तो उस केस में थोड़ा बहुत चल जाता है, दिस स्टैंडर्ड वी कांट डू इट. बट अगेन डिसअपॉइंटमेंट वही होता है कि कई बार वन स्टार्टअप नेगोशिएटिंग अगेंस्ट अनदर स्टार्टअप, बट द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द अदर साइड हैज नो क्लू व्हाई दैट क्लॉज इज देयर या व्हाई दैट कॉन्सेप्ट इज देयर. या कई बार क्या होता है कि जब आपने बहुत नेगोशिएट कर लिया, तब समवन फ्रॉम द अदर साइड विल से कि यार ये तो हमारे में जरूरत ही नहीं थी, ये आया क्यों है. And then you realize कि यार we wasted so much time because someone did not read the document correct, right? या someone was not prepared. तो वो instances काफी बार होते हैं. In fact, कई बार वो बहुत funny हो जाते हैं क्योंकि आपको I won't say खुशी होती है, but हंसी आ रही होती है अंदर से कि यार हंसी मतलब frustration वाली भी और amusing वाली भी. तो वो चीज होती है. अब आपको लगता है कि morally आप you won a point. You can't show that your delight कि देखा मैंने कहा था. वो नहीं होता है, बट ये चीजें काफी हो जाती हैं. So this is something and this is I would, अगर I think ये कॉन्वर्सेशन हमारे पहले इनिशियल पार्ट में भी हो सकता था, जहाँ पे अगर मुझसे आप पूछते कि is there any advice that you would like to give to aspiring lawyers या law students, तो मैं ये कहता कि यार इतना एफर्ट करना कि आप जो भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो या बना रहे हो या किसी के बेसिस पे आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको समझ लो एक बार. it makes life easy for all the parties, right? आपकी सिचुएशन कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगी because obviously if you know why the clause is there, see it's no, अगर आपका लॉजिक गलत है वो that's not the problem. अगर आपको लगता है कि मैंने सोचा ऐसा होगा, वो गलत निकला है, that is fine. बट अगर आपको पता ही नहीं है, you are clueless, that's a problematic situation. Right. तो for aspiring lawyers या law students ये चीज मेरी एडवाइस होगी कि एटलीस्ट थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है. आपको टेम्पलेट बहुत मिलते हैं, राइट? आज की डेट में हमको, आप गूगल पे जाओ, आपको हर चीज का स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाएगा. हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, आपको एआई की वजह से आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिल जाएंगे. बट 1% जो ह्यूमन दिमाग लगाना है, उसको हमको जिस दिन लगाना छोड़ देते हैं, उस दिन documentation becomes very difficult. Discussion becomes very difficult. So for all the aspiring lawyers, I would really sort of suggest कि ये चीज हमको करनी चाहिए कि understand your document, understand the transaction, understand the context, and then it will be very easy for all the parties to navigate it. Right. Great. Good advice. Actually, I also wanted to ask you a couple of advices for like brief advices for like people who are getting into business.
हाँ लीगल तरीके से हाउ दे शुड प्रिपेयर? सी आई थिंक बेसिक 2-3 चीजें हैं. आपके बेसिक कंप्लायंसेस पे कभी मिस मत करो, बिकॉज हम लोग होता है ना कि सोचते हैं कि लेट्स से शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं तो ऐसा एक्ट एग्जिस्ट करता है. बट द कंप्लायंस इज वेरी वेरी सिंपल. आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वेरी वेरी मिनिमल फी. जस्ट डू दैट. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है जब आप नहीं करते हो और कभी वो हाईलाइट होता है, देन द कॉन्सिक्वेंसेज आर इनकन्वीनियंट. सो पहला, to answer your question, first thing, understand the basic, very very minimum basic compliances that you need to do. Please do that, because cost of not doing is far more than cost of doing it right now. Okay. तो वो जरूरी है. दूसरा, आपकी जो की बेसिक चीजें हैं, अगेन ये ज्ञान वाली चीज नहीं है, बट एक बिकॉज आपने सजेशन मांगा है कि अगर आप मल्टीपल फाउंडर्स हो और आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो एक फाउंडर्स एग्रीमेंट काफी जरूरी हो जाता है. इट्स नॉट लीगली मैंडेटेड, बट वो काफी जरूरी हो जाता है. तीसरा, इन ऑर्डर टू मैनेज योर रिस्क वेल, जस्ट हैव अ बेसिक थिंग्स कवर्ड इन योर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. व्हेन आई से वो कैसे एम्प्लॉय एग्रीमेंट में आप कॉन्फिडेंशियलिटी आईपी, आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ डील करते हो तो एक एनडीए साइन कर लेना चाहिए, ताकि आप उनके डेटा के साथ मिसयूज ना करो, वो आपके डेटा या इन्फॉर्मेशन के साथ मिसयूज ना कर पाए. तो ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखें हम लोग, तो इट बिकम्स फेयरली सिंपल. उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आपको पता है कि आप मल्टी मिलियन फंड रेज कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए होगी, तो वो आप करोगे. या आपको पता है कि आप किसी नए प्रोडक्ट में जा रहे हो, लेट्स से यू आर टिपिकल ट्रेडिशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बट यू आर कमिंग आउट विद अ फिनटेक प्रोडक्ट. उस केस में आपको पता है कि आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो आपको आरबीआई रेगुलेशंस या गाइडलाइंस से नेविगेट करने में हेल्प करे. तो वो चीजें करनी, बट अदरवाइज बेसिक सैनिटी शुड हेल्प. मतलब अगेन मैं बार बार ये लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इट्स वेरी सिंपल. मतलब लोगों को लगता है कि यार लीगल में नहीं पढ़ना है, व्हाई शुड वी गो टू अ लॉयर, या इफ यू गो टू अ लॉयर इट्स एन नेवर एंडिंग साइकिल कि यार एक बार लॉयर के पास चलेंगे, कुछ ना कुछ बताता रहेगा. वो होगा, कई बार ये भी होगा कि लॉयर आपकी भलाई के लिए बताएगा, बट पीपल टेक इट अदर वे राउंड. बट अदरवाइज इवन इफ यू डोंट रेगुलरली एंगेज विद अ प्रोफेशनल, नॉट जस्ट अ लॉयर बट एनीवन हु कैन एडवाइज यू ऑन दीज बेसिक थिंग्स, you should still at least keep your house in order. तो summary ये है कि as long as house is in order, it's fine. थोड़े you can't, even with a lawyer being with you, you cannot mitigate 100% of your risk. You're only managing your risk. तो अगर आप बिना lawyer के भी या एक basic one time advice से अपनी basic risk manage कर लेते हो, that will really go long way. Great advice for the people who are going to do some business. अब ना मेरे फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टेक्नोलॉजी एंड एआई. आपने भी उसको टच कर दिया. और द फनी पार्ट इज, आज तक मैंने जितने लोगों से भी बात की है, एंड दे आर फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, फिनटेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीबॉडी हैज टच्ड दिस टॉपिक देमसेल्व्स, राइट? सो व्हाट इज दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैविंग इम्पैक्ट ऑन द लीगल प्रोफेशन? आपने क्या नोटिस किया अभी तक? आई थिंक I won't be in denial, impact है, ठीक है. बट जो मेरा मानना है, impact is not a adverse impact. एक होता है ना कि हम लोग instant reaction होता है, बहुत बार टेक्नोलॉजी को हम लोग विलन पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि चैट जीपीटी आ गया है, तो लॉयर्स की जॉब चली तो नहीं. ऑब्वियसली आई एम अ फर्म बिलीवर कि कभी नहीं जा सकती और कभी नहीं जाएगी. कुछ चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, बट मेरा मानना है कि वो टेक्नोलॉजी आपको मदद कर रही है. तो एनी लॉयर who is able to or who can use that technology, it will only help you. It will help you either to avoid redundancies. जो काम आप 10 घंटे में करते थे वो आप 2 घंटे में कर लोगे, एक वो हो जाएगा. कुछ चीजें जो that could be delegated, जो आपको लगता था मैं खुद ना करूं कोई और कर दे, तो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो वो आपको हो जाएगी. तो टेक्नोलॉजी इन लीगल कैन हेल्प यू ऑन दीज एस्पेक्ट्स. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च करनी होती है हम लोग लॉयर्स को, we have to, let's say कोई लीगल प्रोपोजिशन है and we have to look for case laws since 1950s. तो अब सब कुछ देखने में, पढ़ने में, it will take a lot of time. Technology can help you a lot. तो आपको एक शॉर्ट समरी मिल जाएगी या आपको बेसिक मटेरियल मिल जाएगा, बट कंटेंट तो आपको खुद पढ़ना ही पढ़ना है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू कांट बी रिप्लेस्ड. सेकेंडली, आप एआई टूल्स की मदद से यू कैन क्रिएट और यू कैन हैव अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन. आज की डेट में आपको एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट भी चाहिए तो आप बना सकते हो. क्वालिटी इज ऑल्सो फेयरली गुड, बट
यू आर डीलिंग विद ह्यूमन एलिमेंट, राइट? आपका एम्प्लॉय भी ह्यूमन है, आपके कस्टमर्स भी रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमंस हैं, तो वहां पे आपको ह्यूमन आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे, एंड यू हैव टू बी रेडी विद देयर काउंटर्स। तो वहां पे एटलीस्ट फॉर नाउ टेक्नोलॉजी इज नॉट इवॉल्व कि आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाए, वो आपको आपका दिमाग ही दे पाएगा, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो आपको आपका एक्सपीरियंस दे पाएगा, बिकॉज आपने हो सकता है उस टाइप की 6 सिचुएशन या उससे सिमिलर सिचुएशन 6 देखी हो, और आपने उनको 6 अलग अलग ढंग से एड्रेस किया हो, तो वो एक्सपीरियंस आप साथ में बता पाओगे। सो टू दैट एक्सटेंट द टेक्नोलॉजी विल ओनली सपोर्ट यू, इट इज नॉट टेकिंग अवे योर जॉब, इट विल मेक इट वेरी वेरी एफिशिएंट फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, अब आप ये देखो कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आया था तब भी डॉक्यूमेंट बनते थे, तब वो टाइपराइटर में बनते थे। एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे जाने के लिए अगर लेट्स से एक टाइपराइटर ने एक सेंटेंस, एक टाइपिस्ट ने एक सेंटेंस गायब कर दिया, गलत कर दिया, तो उसको कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं था, मुझे दोनों डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन पढ़ने थे। नाउ इट इज सो सिंपल, वी कैन यूज वर्ड कंपेयर फीचर टू सी कि लास्ट वर्जन से इस वर्जन में क्या चेंजेस हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जब डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें चेंजेस ट्रैक मोड में नहीं होते हैं, बट यू विल स्टिल वांट टू रिव्यू एंड कंपेयर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी ने आपका काम इजी किया है, राइट? अब आपको 2 घंटे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, वो आपका 2 मिनट में या 2 सेकंड में हो जाता है। तो like that basic technology, AI, I think, I strongly believe, is going to help us all if we are able to use it for productive means. Okay. और जहां तक जॉब कम होने की बात है, नहीं होगा, बिकॉज एक तो हम जिस देश में रहते हैं वहां पे जॉब कम होंगे नहीं नॉर्मली, बिकॉज भारत में लॉज आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, बिजनेसेस आते जा रहे हैं, सिचुएशंस आती जा रही हैं, तो लॉयर्स की जरूरत भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कम नहीं होगी। अब केवल ये है कि क्या वो पेस सेम रहेगा कि जरूरत और जो डिमांड और सप्लाई है उसमें पेस सेम है, अलग है, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट इवन अदरवाइज वॉट एवर द केस में भी लॉयर्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी। और इनफैक्ट ये चीज भी है, हर लॉयर की डिमांड है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छे वकील हैं, जो बहुत नामी वकील हैं, उनकी डिमांड है, लेकिन कुछ जो उतने प्रोमिनेंट नहीं है या उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी नहीं है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप देखो हर वकील की डिमांड है। उसका रीजन ये है कि आपको हर वकील को एक क्लाइंटेल मिलता है, वो या तो कॉम्पिटेंसी वजह से मिलेगा या लोकेशन की वजह से मिलेगा, कई बार प्राइसिंग की वजह से भी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक पर्टिकुलर मैटर के लिए उतने ही रुपए खर्च करना चाहता है। व्हेन आई से दिस अ वेरी क्रूड स्टेटमेंट टू मेक, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कि मुझे पता है कि मुझे बेसिक एफिडेविट बनवाना है, तो एफिडेविट बनाने के लिए आपको 1000 रुपए चार्ज करने वाले लॉयर्स भी हैं। कुछ ऐसे लॉयर्स होंगे जो उस चीज के 10,000 भी चार्ज करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो उसके 50,000 चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली इट्स एफिडेविट। और मैं ये नहीं कि एफिडेविट सेम होगा, क्वालिटी भी मैटर करेगी। A lawyer who is doing it for a lower price, the quality may be same, it could be inferior, or it could be superior also. ऐसा भी हो सकता है कि because इस वाले बंदे को इतना एक्सपीरियंस था, इसने इतने एफिडेविट बनाए, इसको पता है कि कहाँ कहाँ बारीकियां हैं, तो हो सकता है he is charging less but giving you a superior product. So pricing for a legal service should not, and that is true for all these services actually, should not be the determinant. बट हाँ, टू आंसर अ क्वेश्चन, हमेशा डिमांड रहेगी, बिकॉज आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट के क्लाइंटेल मिलेंगे, आपको अलग लोकेशन के मिलेंगे, बिकॉज आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है। यू नो, अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर बेस्ड आउट ऑफ डिफरेंट लोकेशंस विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो आप गूगल मीट पे, टीम्स पे, जूम पे कनेक्ट कर लेते हो, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रेफर दैट पर्सनल कनेक्ट। तो लेट्स से इन अ टियर 2 टियर 3 सिटी, नॉट everyone would like to come to Delhi कि मुझे एफिडेविट या अग्रीमेंट बनवाना है, तो मैं दिल्ली क्यों जाऊं? I will go to a my local advisor, a local lawyer. तो वो चीज हमेशा रहेगी, और जब तक वो रहेगी, डिमांड रहेगी। So my next question is also in Gen AI, but it's more like from a different perspective, which is like अगर कोई आज आपके पास आए और बोले मुझे AI based business बनाना है, हाँ, so उसके लिए हमारा लॉ रेडी है या अभी रेडी नहीं है? देखिए, AI बेस्ड बिजनेस बनाना है, एक्चुअल में लॉ ग्रे एरिया है, लॉ वैक्यूम है, क्योंकि अभी तक लॉ ऐसा कुछ नहीं है जो AI एज सच को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, या ऐसा कुछ नहीं है जहां पे कोई गाइडलाइंस हो कि आपको AI से आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अभी धीमे धीमे
पॉलिसी पेपर्स, कंसल्टेशन पेपर्स फ्लोट हो रहे हैं, गवर्नमेंट इवन ट्राइंग टू डू कि शुड वी रेगुलेट इट या टू व्हाट एक्सटेंट वी रेगुलेटेड. आप सोचो कुछ टाइम पहले क्रिप्टो में यही अनसर्टेनिटी थी ना. Right. अ लॉट ऑफ टाइम्स everyone was willing to do something to with respect to blockchain. फिर क्या हुआ कि blockchain and crypto asset became synonymous क्योंकि information asymmetry थी. अगर कोई ब्लॉकचेन का बिजनेस या कोई ब्लॉकचेन रिलेटेड डेवलपमेंट कर रहा है तो इट वाज इजी फॉर दैट पर्सन टू कम्युनिकेट कि भाई मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ. ठीक है, अब वो मैं टोकन बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, इट वाज इमटेरियल. बट शॉर्ट आंसर वाज आई एम डूइंग समथिंग अराउंड क्रिप्टो एसेट और डिजिटल एसेट्स. तो एम्बिग्यूटी थी. It took a lot of time and lot of consultations for the Reserve Bank of India to come up with some legislation कि भाई इंडिया में these assets will not be doable. So it took a lot of time. Similarly, what happens to business based upon AI or dealing AI, specifically AI, उस पे consultation guidance आ चुकी है, but it's not very very clear or it's not very very codified. Okay. It will take time, but there is no clear cut प्रोहिबिशन एज सच. एक कुछ समय पहले एक सर्कुलर आया था जहां पे जो LLM वाले मॉडल्स थे उसमें गाइडेंस आई थी कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट देयर इजंट मच. So I think it was like they had to take permission from the government, right? Correct, It was something correct. like that. तो बस उतनी लिमिटेड थी. ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस इन डिटेल. आई थॉट यहाँ के लिए उतना डिटेल में जाना नहीं है, बट हाँ उतनी लिमिटेड गाइडेंस है बस. उसके अलावा ऐसा कोई लॉ नहीं है. या इवन लेट्स से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करते हैं, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बिजनेस में AI यूज नहीं कर सकते हो या AI बेस्ड बिजनेस नहीं बना सकते हो. So before we let you go now, tell us a little something about yourself on a personal level. Like what are your hobbies? What do you like to do in your free time or otherwise? So in terms of hobbies, I'm very inclined to music. ठीक है, तो music has been my hobby since school days. I used to sing. I still sing. I play violin. तो ये चीज़ मैंने स्कूल टाइम में कर ली थी. बट उसके बाद कॉलेज आके फिर प्रोफेशन में आके आई कुड नॉट डू मच ऑफ दैट. सो अराउंड 2019, हाँ कोविड से थोड़ा सा पहले आई पिक्ड अप गिटार. तो नाउ गिटार हैज बिकम और इज अ हॉबी. सो आई प्ले गिटार, सिंगिंग चलती रहती है. एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज एक्चुअल में ना हॉबी का टाइम जो है वो OTT ने ले लिया है. तो जो टाइम एक्चुअल में हॉबी में जाना चाहिए था या वॉन्डरिंग में जाना चाहिए था, वो हम एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई वेस्ट, आई वोंट से स्पेंड, आई वेस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन OTT. तो जितना भी कंटेंट, कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि आपका देखने मन करता है, कुछ माइंडलेस होता है, इट्स माइंडलेस बट यू स्टिल आर नॉट अडिक्टेड बट क्वाज़ी एडिक्टेड. आप देखते रहते हो माइंडलेसली. तो वो एक चीज है जो हॉबी नहीं है, बट हाँ दैट इज हाउ आई एंड अप spending/wasting my time. In terms of hobby, जो दूसरी हॉबी है, एक ना मुझे I won't call myself as a fitness freak, बिल्कुल भी नहीं हूँ. इनफैक्ट आपको देख के लग रहा होगा कहीं कोई मसल बॉडी नहीं है वैसा. बट आई लाइक टू डू सम काइंड ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी. तो मेरे लिए सबसे अच्छी जो होती है वो होती है वॉकिंग. और वॉकिंग ऐसा नहीं है कि मैं रूटीन से शेड्यूल जाता हूँ कि सुबह 5 बजे जाऊँगा या शाम को 6 बजे जाऊँगा. I sort of like to go for walks. और मेरे घर के पास एक काफी अच्छा पार्क है. It's a huge park. तो I like to go there a lot. और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन जाऊँगा, कुछ फिक्स शेड्यूल है कि मुझे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे जाना है. Whenever I get time, and I'll be honest, I get a time on a lot of situations, on a lot of occasions. Because एक तो क्या होता है, हम लोग की जो लाइफस्टाइल है, जो टाइम स्केल है, वो ट्रैफिक से बहुत रेगुलेट होता है. तो I sort of try to leave office early on time so that I don't get stuck in traffic. So if I'm able to leave early on, any day, I reach home on time. One option is to immediately go back to work, कि जो आपका छूट गया वो पूरा कर लो. Second is which I follow. I take a break. I go out for a walk, come back, sit, and then start working. तो walking is something which I like a lot. और फिर जो आजकल let's say trend है, जो हर कोई कहना चाहता है कि I like traveling. Manage नहीं हो पाता है बहुत frequently, but yeah, traveling is something which all like to do, and we all learn from a lot. Right. So that these 3 or 4 are things which I like to enjoy. Okay. So thank you for sharing your insights and also giving us so much time. We really appreciate it, and I hope the audiences will also gain a lot of insights from them. And we'd like to maybe continue this discussion at a
certain point of time later on in the future. But for now, thank you so much for coming. Thank you, Dipankar. And it was really a privilege. In fact, this is my first official kind of podcast in this kind of setup and scenario. Yeah. I really enjoyed it. Initial nervousness थी. Yeah. I won't say कि there were butterflies in my stomach, but हाँ थोड़ा सा hesitation होता है. I think thank you for making me comfortable with this, because you were very very organic or natural. So I was able to ease into this discussion, and I hope कि थोड़े decent insights आए हों. Yeah, sure. वो तो आए ही हैं. I'm very sure about it because I was also listening. So thank you very much, and I hope the audiences also enjoyed it. For everything else, you will find the information in the description. And till next time, see you. Thank you. Hi, this was a great conversation with Ashish Porwal, who has been in this legal profession for more than 15 years and advised so many clients, and you've just heard from him. So I hope people specifically in the startup or the MSME industry would have gotten some of their answers. If not, drop them in the comments and support us. Give us a like, share our videos, subscribe our videos, and hopefully we'll get you more great videos in the future. Till then, see you.